چیزیں ہیں اسلام میں، ایک ہے امر بالمعروف، یعنی لوگوں کو نیکی کی طرف بلاؤ، دوسرا ہے نہی عن المنکر۔ صحیح امام کے لیٹسٹ اپڈیٹ کے لیے ہمارے چینل اللہ کا دین کو ضرور سبسکرائب کریں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک بستی پر اللہ حکم دیتے ہیں فرشتوں کو کہ عذاب نازل کرو۔ بڑے بڑے شیخ الحدیث، بہت نیک دل لوگ، بڑے بڑے کاروباری، نمازی، دیانتدار، ایماندار، بڑی باپردہ عورتیں، متقی، پرہیزگار، گلی گلی میں مسجدیں، ہر جگہ ایک دوسرے کے ساتھ ذکر اور اذکار کی محفلیں لگی ہوئی ہیں، نعتیں پڑھ رہے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، تعلقات۔ تو فرشتوں کے ذہن میں بات آئی کہ بھی اس بستی میں تو بہت اللہ والے ہیں، جو دنیاوی لحاظ میں وہ بھی اللہ کے قریب ہیں، انہوں نے بھی گھر میں نماز کے کمرے بنائے ہوئے ہیں، دیندار تو ہیں ہی۔ تو انہوں نے واپس ریپلائی کی اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ یہ جس بستی پر آپ حکم دے رہے ہیں نا عذاب نازل کرنے کے لیے، یا اللہ اس میں تو آپ کے بہت سے مقرب بندے بھی رہتے ہیں۔ اب مقرب بندہ ضروری تو نہیں کہ بس وہ شکل صورت والا ہی ہو، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کو کہا یا اللہ یہاں تو بہت بڑھیا بڑھیا لوگ بھی تہجد بھی پڑھ رہے، اشراق کی نماز بھی پڑھ رہے ہیں، تو یہاں تو بڑے زبردست لوگ ہیں، تو اس لیے تھوڑا حکم میں ریویو کر لیا جائے کہ بھی یہی وہ بستی ہے جس کے اوپر عذاب نازل کرنے کا حکم دیا، کیا یہی وہ بستی ہے جس کو پلٹنے کا حکم دے دیا گیا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے واپس ریپلائی آتی ہے کہ ہاں یہی ہے، اور یہی ہیں وہ سارے بدبخت، یہی ہیں وہ سب بدماش۔ یا اللہ کیا ہوا، یہ تو نمازی ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، نمازی ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، لیکن جب میرے بندے پر، میرے کسی مظلوم پر، میری جو مخلوق بنائی ہوئی ہے ان پر کسی پہ مصیبت آتی ہے، دکھ آتا ہے، پریشانی آتی ہے، ظالم ان پر مسلط ہوتا ہے، کوئی چیختا ہے، کوئی روتا ہے، تو یہ بدبخت اپنے سجدے چھوڑ کے اس مظلوم کی مدد کرنے نہیں جاتے ہیں۔ اس لیے یہ بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جو ظلم کرنے والے ہیں، اس لیے ان کو ظالموں کے ساتھ ہی لپیٹ کے جہنم کے اندر ڈال دو۔ دو چیزیں ہیں اسلام میں، ایک ہے امر بالمعروف، یعنی لوگوں کو نیکی کی طرف بلاؤ، دوسرا ہے نہی عن المنکر، کہ جو بدماشی کرتے ہو، گنڈا گردی کرتے ہو، اسلام کی روایتوں میں، اسلام میں رہ کے اسے توڑتے ہو، شریعت میں دخل اندازی کرتے ہو، ان کو ٹوکو، روکو ان کو اپنی طاقت کے مطابق۔ اسلام نے کہا نا ایمان کے 3 درجے، پہلا برائی کو دیکھو تو اپنے ہاتھ سے روکو، دوسرا برائی کو دیکھو تو اپنی زبان سے روکنے کی کوشش کرو، تیسرا اگر برائی کو دیکھے تو اپنے دل میں کم از کم برا مانو۔ اب ہمارے طول و عرض کے اندر جو لوگ دیندار طبقہ بن گیا، ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو یہ بات بری لگ جائے، لیکن جو دیندار طبقہ بن گیا اس نے پچھلے 75 سال میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان احکامات کی کھلی خلاف ورزی یہ کی ہے کہ وہ صبح شام یہ تو کہہ رہے کہ آؤ نماز پڑھیں، آؤ روزہ رکھیں، آؤ زکوٰۃ دیں، آؤ سچ بولیں، آؤ محبت بانٹیں، آؤ مل کے کھانا کھائیں، آؤ دوسروں کی مدد کریں، لیکن جب کوئی کسی پر ظلم کرتا ہے تو ان کی زبان چپ ہو جاتی ہے، لیکن جب کوئی روتا ہے تو اس کے آنسو
पूछने नहीं जाते, लेकिन जब उन्हीं में से कोई गुंडा अपने बेटे की शादी में ढोल बजवाता है तो ये भी वहां चुप करके एक तरफ बिरयानी खाते हैं। इनके ही माशरे का कोई प्रधान, इनकी मस्जिद का कोई जिम्मेदार जब अपने बच्चों की शादी में मखलूत खाना खिलाता है तो ये उसको टोकते नहीं है। इन्हीं के माशरे के लोग जो दाढ़ी मुंडवाते, जो बाहर शराब पीते, वो मस्जिद में आके शूरा के मेंबर बनते हैं तो ये उनको टोकते नहीं है, क्योंकि ये लोगों को मलाई बांट कर करके अपनी रजामंदी चाहते हैं, नाराजगी मोल लेके अल्लाह की रजामंदी नहीं चाहते। ये किस तरह हो सकता है? अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकिर, इस्लाम की गाड़ी के तो फ्रंट पहिए, ये मुमकिन है कि एक पहिया लगा दिया जाए और दूसरा निकाल दें और गाड़ी तेज रफ्तार क्या, वो चलेगी नहीं अपनी जगह से, उसका खड़ा रहना मुश्किल हो जाएगा। रजामंदी ढूंढ रहे हैं, अल्लाह को नाराज कर रहे हैं। अच्छे लोग अमल में और नीयत में फर्क आ गया। किसी दुकानदार के पास चले गए अच्छे, अगर कोई गरीब सामान खरीदने आएगा, वो बोलेगा जनाब ये चाहिए, तो कपड़े का मिसाल के तौर पे कोई दुकान है, वो एक चीज उसके सामने खोल के रखेगा, वो कहेगा कुछ और दिखाओ, दूसरी रखेगा, वो कहेगा कुछ और दिखाओ, कहेगा भैया लेना है लो, नहीं लेना है तो जाओ। अब इसी दुकानदार के पास कोई रईस ज़्यादा आ जाए, वो अगर 10,000 चीजें भी खुलवा लेगा तो ये उसके सामने चू नहीं करता, तो इसका मतलब ये दोगला बंदा है, इसके अंदर मुनाफकत भरी हुई है, ये बंदे की हैसियत देख के उसके साथ मामला करता है। दीनदार तबकों में भी यही है। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को फिर ये बात ना अच्छी लगे। अब दीनदार तबकों में भी अगर जब दस्तरखान पे बैठते हैं तो बड़े मौलाना साहब को, पीर साहब को, प्रधान जी को यह फिक्र है कि भाई जो खास के चौधरी हैं वो आ जाएं। कोई गरीब अगर इनके साथ बैठ जाएगा, उसको बोले जरा टूट जा, यहाँ फला चौधरी साहब को बिठाना है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं, कुफारे मक्का है, सहाबा बैठे, गरीब सहाबा बैठे, मिस्कीन सहाबा बैठे, और उन्होंने कुफारे मक्का ने आके बैठना शुरू किया। और जब इन सहाबा को पीछे हटना था, अल्लाह ने जिब्रील को भेज दिया, मेरे प्यारे महबूब इन चौधरियों को मत देखो, इनकी कोई हैसियत नहीं उनके मुकाबले में जो पहले से तुम्हारी मजलिस के अंदर बैठे हुए। दीनदार तबका इस्लाम की बुनियादी असूलों से खिलवाड़ कर रहा है। ये बात अब तय कौन करेगा कि किस सब में कौन खड़ा होगा? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता चुके, जो पहले आएगा वो पहले खड़ा होगा, जो बाद में आएगा वो पीछे खड़ा होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने शरीयत में इस्लाम के मानने वालों पर यह पाबंदी लगा दी कि जब तुम लोगों को नेकी की तरफ बुलाओगे तो उनको गुनाहों से रोकना तुम्हारी जिम्मेदारी है। आज अगर कोई बाप अपने बेटे को इसलिए गुनाह से नहीं रोकता कि मेरा बेटा मुझसे नाराज हो जाएगा, तो बाप ज्यादा गुनहगार है। अगर आपकी किसी से दोस्ती है और वो बंदा गलत काम करता है, आप भी उसी के साथ रोजाना फिरते हो और उसको गुनाह से नहीं रोकते, तो आप उसके दोस्त नहीं हैं, आप जहन्नुम के साथी हैं उसके, आप दोस्त नहीं हैं उसके। अगर दोस्त होते तो उसको रोकते नहीं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं अपने भाई की मदद करो चाहे वो मजलूम हो या जालिम। साहबा हैरान रह गए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलूम की मदद तो समझ में आती है, गरीब की मदद समझ में आती है, कोई गिर गया उसको उठाने की बात समझ में आती है, कोई रोता हो उसको हंसाने की बात समझ में आती है, कोई परेशान हो उसको दिलासा देने की बात समझ में आती है। या रसूलुल्लाह अगर कोई भाई जुल्म करता हो, किसी को मार रहा हो, किसी की जगह हथियार हो, किसी के साथ बदतमीजी कर रहा हो, किसी का दिल तोड़ रहा हो, या अल्लाह या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी मदद कैसे करें? करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अरे उसकी भी तो मदद करो, जाके उसके उस हाथ को पकड़ लो जिससे वो जुल्म करता है, उसकी उस जुबान को रोक दो जिससे वो लोगों के दिलों को तोड़ता है, उसके उन बढ़ते हुए कदमों के आगे दीवार बन के खड़े हो जाओ जो गुनाह की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि तुम उसके दोस्त हो। उस जालिम को भी रोकना तुम्हारे अंदर उसकी जिम्मेदारी है। चुप है जैसे सांप सूंघ गया इनको। दुश्मन के मुकाबले में तो ये क्या बोलेंगे? शरीयत में जो लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, जो लोग मस्जिदों में, मदारिस में, मुसलमानों के इलाके में जो खुद मुसलमान जो कहते हैं कि नौजुबिल्लाह हम शरीयत से ऊपर है, हम बताएंगे क्या होगा।
कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताएंगे क्या होगा। कल अभी हम लोग गुजरात में थे रात, तो वहां मैंने अपने मुसलमान भाइयों से कहा, वो एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बना रहे, उसके लिए इजलास बुलाया गया, तो मैंने कहा चंदा भी तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से मांगो ना। रसूलुल्लाह ने ऐलान किया कि आओ अल्लाह के रास्ते में तुम्हारी जरूरत है, तो जो मालदार है वो माल लेके आए, जो टैलेंट वाले हैं वो टैलेंट लेके आए, जो ताकत वाले हैं वो ताकत लेके आए, जो वक्त वाले हैं वो वक्त लेके आए, जो बसीरत वाले हैं वो बसीरत लेके आए। सिर्फ पैसा नहीं चाहिए, दुनिया में बसने वाले तमाम अहले इस्लाम में जो खूबी है उन तमाम खूबियों की आपको जरूरत है। जब तमाम खूबियां इकट्ठी होंगी तब आप एक बड़ी यूनिवर्सिटी की तामीर करने के काबिल हो जाएंगे। दीन को पहचानना है उस रविश से जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अता की। हम पहले अपने आप को क्यों नहीं टटोलते? आपके दिल में अगर ये बात आती है ना, बार बार कहते हैं कि दिल और नीयत की, दिल और मामलात की, दिल और आदतों की मुनाफकत को बदल लो मुसलमानों। अल्लाह इमारत को नहीं देखते, अल्लाह पगड़ियों को दाढ़ियों को नहीं देखते, अल्लाह बचने वाले पैसों को नहीं देखते। अल्लाह के नजदीक तुम्हारा गोश्त और खून नहीं जाता, अल्लाह के नजदीक रोजेदार का भूखा पेट नहीं पेश किया जाता। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहिए सल्लल्लाहु, जोर से सल्लल्लाहु, अभी भी आवाज नहीं आई, सल्लल्लाहु। हाँ, अल्लाह के नजदीक ना कुर्बानी का गोश्त जाता है, अल्लाह के नजदीक ना रोजेदार की भूख जाती है, अल्लाह के नजदीक ना हमारा पैसा जाता है। क्या जाता है अल्लाह के नजदीक? प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, अल्लाह हमारी नीयतों को देखते हैं कि मेरे बंदे की नीयत कैसी है। अगर नीयत अच्छी है तो कुर्बानी कबूल है, नीयत खराब है तो कुर्बानी जाया है। नीयत अच्छी है तो रोजा कबूल है, नीयत खराब है तो रोजा जाया है। नीयत अच्छी है तो नमाज कबूल, नीयत खराब तो नमाज खत्म, नीयत अच्छी है तो सदका कबूल, नीयत खराब तो सदका खत्म। तो ये जो मिजाज में दोगलापन है, जो मुनाफकत है मिजाज के अंदर। शाही इमाम के लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल अल्लाह का दीन को जरूर सब्सक्राइब करें।